Good morning, dear students. Students, in this chapter, we have already discussed about different types of cell organelles. We have discussed about the most important organelles like endoplasmic reticulum. Secondly, we have discussed about Golgi complex. And the third organelle which we talked about was lysosomes. तो इन तीनों ऑर्गेनल के बारे में हमने बात कर ली है that endoplasmic reticulum is mainly for the synthesis of proteins and lipids. मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं and these ribosomes are involved in the process of synthesis of proteins. The smooth endoplasmic reticulum is associated with synthesis of lipids. And through the network of tubules of ER, these substances will be transported either to Golgi complex or will be transported to any other part of the cell. ठीक है, तो क्योंकि वो एक नेटवर्क की तरह चैनल लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए जो भी नए सब्सटेंस बनेंगे वो आइदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स को पास ऑन करेगा या तो फिर वो उनके नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स में रन होते होते इट विल मूव टू सम अदर कंपोनेंट और पार्ट ऑफ द सेल. We also discussed that endoplasmic reticulum does other functions in specialized cells also. For example, in liver cells, it is responsible for detoxifying the drugs. Whereas in the muscle cells, it is responsible for the storage of calcium. So this means that endoplasmic reticulum, along with synthesis of proteins and lipids, has other major functions also. Now these proteins and these lipids synthesized by endoplasmic reticulum are being modified, processed and packaged by the Golgi complex. Golgi complex had presence of flat membranous sac-like structures. These were known as cisternae. और ये जो सिस्टर्ने है उसमें एक तरफ से कोई भी वेसिकल एंटर होगी जिसमें कोई भी प्रोटीन या लिपिड होगा and when it exits out of the Golgi complex it will be modified and it will be packaged or you can say it will be stored in the form of the vesicle. वो वेसिकल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा and then after it will be sent to any component of the cell or even outside the cell. सेल के बाहर भी भेजा जा सकता है, सेल के अंदर भी भेजा जा सकता है in that round vesicles. So Golgi complex is mainly for modifying the sugars for preparation of glycolipids and glycoproteins. Glyco मतलब sugar. Attachment of sugar with lipids is glycolipids. Sugar with proteins is called glycoproteins. So these substances are being prepared by the Golgi complex. The third one that was the lysosomes. Golgi complex में से ही जब कोई वेसिकल सेपरेट होती है तो this vesicle if it has presence of large number of digestive enzymes it will be forming lysosomes. Lysosomes are membrane bound vesicles और इन vesicles के अंदर होते हैं enzymes और ये enzymes क्या काम करते हैं, कोई भी substance को break down करना, ये function रहता है of the lysosomes. ठीक है, भले ही वो वर्न आउट ऑर्गेनल हो, पुराना हो गया हुआ ऑर्गेनल हो या तो फिर कोई फूड मटेरियल हो या तो कोई बैक्टीरिया है, इसे एनगल्फ करके किल कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, हाइड्रोलाइज कर लेता है. कौन? लाइसोसोम्स. ओके, सो व्हेन द लाइसोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर completely engulfing all the cell organelles itself and kills a cell itself, it is known as suicidal bags. So lysosomes were commonly also known as suicidal bags. तो इन तीनों के बारे में हमने आगे डिस्कस किया था. Now we are discussing about one of the most important organelle of the cell and that is known as mitochondria. The name of the organelle is mitochondria. Now this mitochondria is present in both plant cells में भी होता है और animal cells में भी होता है. पर माइटोकॉन्ड्रिया को हम बेसिकली कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट इज द साइट फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी. जहां से हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है वो सेल के अंदर प्रेजेंट हुआ माइटोकॉन्ड्रिया है.
माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सिंथेसाइज करने का काम करता है. इट मेक्स द एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस जिसे कहा जाता है ATP, adenosine triphosphate. So let us have a look on the structure of mitochondria. So first we will mention that mitochondria is present both in plant cells and animal cells. दोनों ही cells में mitochondria present है. Now mitochondria is commonly known as powerhouse of cell. क्या कहा जाएगा उसे? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो किसका प्रोडक्शन करता है? एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, इसीलिए इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब दो मेम्ब्रेन्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में. सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मतलब दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन. सो द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दो लेयर्स है, तो एक को हम क्या कहेंगे? आउटर लेयर, एक को क्या कहेंगे? इनर लेयर. तो जो आउटर लेयर होता है वो बहुत ही पोरस होता है. पोरस मतलब जिसमें बहुत सारे बड़े साइज के होल्स होते हैं जिससे लार्ज साइज सॉल्यूट भी अंदर एंटर कर सके. इन शॉर्ट वी कैन से दैट माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, राइट. परमिएबल मतलब इट विल अलाउ द सब्सटेंसेस टू एंटर. सो वी विल मेंशन दैट आउटर मेम्ब्रेन is porous, that is permeable and allows large sized solutes to enter. मतलब लार्ज साइज अगर है कोई सॉल्यूट तो भी एंटर हो सकता है थ्रू विच मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? परमिएबल होती है. जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है, द इनर मेम्ब्रेन हैज सेवरल foldings to increase the surface area for various chemical reactions that lead to ATP formation. अब ये मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई है. अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बताया कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? कंटिन्यूअस, पोरस, परमिएबल, जो सबको सारे सॉल्यूट्स को अलाउ करती है. पर इनर मेम्ब्रेन में हमने क्या मेंशन किया है? सेवरल फोल्डिंग्स मतलब it is having foldings on the inner side, right, like this. इन्हें इनफोल्डिंग्स भी कहा जाता है क्योंकि अंदर की तरफ फोल्ड हुए हैं. So inside there will be several inner membrane जो है that is having several foldings. अब ये फोल्डिंग्स क्या करते हैं? ये फोल्डिंग्स सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. सरफेस एरिया को इंक्रीज करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें होने वाले हैं कई सारे केमिकल रिएक्शंस, और ये केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी.
ATP जो है it is adenosine triphosphate and it is the energy currency of the cell. What is ATP? It is adenosine triphosphate. Okay, and ATP is the energy currency ऑफ सेल. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन से एक सब्सटेंस मतलब एनर्जी रिलीज होती है. ये जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज यूज्ड फॉर, मतलब ये जो एनर्जी जो रिलीज हुई वो स्टोर किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में. और जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो ये जो एटीपी में जो फॉस्फेट का बॉन्ड आता है वो बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड ब्रेक होने से वापस एनर्जी रिलीज होती है. सो दीज केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी. पर सारी की सारी एनर्जी तो हम एक साथ यूज नहीं कर लेते, राइट? जैसे कि हमारी बॉडी में एक सेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल 5 माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑल विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. अब मान लो हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं? 10 to the power 14 सेल्स. ठीक है, अब हर एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और हर एक सेल ये ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो बहुत सारी एनर्जी एक साथ रिलीज होगी. पर वो सारी एनर्जी एक साथ हमें जरूरत नहीं होती, इसलिए क्या हो जाता है दैट सम ऑफ द एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन विच फॉर्म? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. जो एनर्जी की बिल्कुल जरूरत है वो तुरंत यूज हो जाएगी और बाकी की एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन दिस केमिकल फॉर्म, राइट? एंड दिस केमिकल फॉर्म इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एक्चुअली ट्राइफॉस्फेट मतलब इनके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और ये जो 3 फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है पायरोफॉस्फेट, वो बॉन्ड एनर्जी स्टोरिंग बॉन्ड है. मतलब उस बॉन्ड में बहुत सी एनर्जी रहती है और जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, सो हियर वी विल मेंशन दैट द एनर्जी रिलीज फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया is stored in the form of ATP. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एनर्जी कहाँ पे यूज हो गई? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्म में स्टोर हो जाती है. ठीक है, सॉरी, एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है. एंड दिस एनर्जी is utilized for various processes in the body or to make other chemical कंपोनेंट्स. मतलब यहाँ पे जो एनर्जी यूज हुई मतलब रिलीज हुई, ये जो एनर्जी रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया से वो एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और फिर जैसे जैसे बॉडी को जरूरत होती है, जैसे कि कोई रिएक्शन करना है उसमें एनर्जी चाहिए या तो कोई फिजिकल एक्टिविटी करना है उसमें एनर्जी चाहिए, तो धीरे धीरे करके वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती जाती है और ये एनर्जी जो है वो हम दूसरे केमिकल रिएक्शंस में यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, सो इट इज यूज्ड फॉर सेवरल प्रोसेसेस इन द बॉडी. मतलब बॉडी के अंदर होने वाली हर एक एक्टिविटी आप समझ लीजिए, जैसे आपका घर जो है उसमें आपकी फैन है, लाइट है, राइट, एसी है, वो एनर्जी के बिना नहीं चलते, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी एनर्जी के बिना काम नहीं कर सकते, राइट? तो वो एनर्जी का सोर्स हमारे लिए क्या है? फूड जो है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करती है? डाइजेस्ट करती है. पर फिर ये सारी चीजें जाती किस में है? ब्लड में. और ब्लड से कहाँ पे जाती है? सेल्स में. अब हर एक सेल के पास फूड मटेरियल है, तो सेल फूड को रख के क्या करेगा? सेल फूड को ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज होने पर क्या रिलीज होगा? एनर्जी. और ये पूरा ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म जिसे रेस्पिरेशन कहा जाता है वो होता कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया में. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल कंसिडर किया गया है. ठीक है,
सो और एक चीज, माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे अलग बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड इट्स ओन राइबोसोम्स. ओके, आई विल मेंशन दैट माइटोकॉन्ड्रिया इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही डिवाइड हो सकता है. इट कैन डिवाइड बाय सिंपल मैकेनिज्म लाइक बाइनरी फिजन, राइट. फिजन से वो एक में से दो डेवलप हो जाते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल, खुद ही डिवाइड हो जाता है टू फॉर्म द टू माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. और उसके पास खुद के राइबोसोम्स हैं जिसकी मदद से वो अंदर चाहिए जो भी प्रोटीन्स वो भी खुद ही प्रोड्यूस करता है. सो इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोटीन्स ऑल्सो एंड इट हैज इट्स ओन जेनेटिक मटीरियल ऑल्सो एंड देयरफॉर दे कैन डिवाइड ऑल्सो बाय देमसेल्व्स. ठीक है. सो लेट अस लेबल दिस डायग्राम. सो दिस विल बी द आउटर membrane. I am writing just MEM, that is whole membrane. ठीक है. This is the inner membrane. इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसे कहा जाता है क्रिस्टे. इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज क्रिस्टे. और बाकी का जो पूरा रीजन रहा, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. और मैट्रिक्स में होता है डीएनए और राइबोसोम्स. ठीक है. मैट्रिक्स हैज बोथ डीएनए एंड राइबोसोम्स. सो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बाकी का रीजन है मैट्रिक्स, ribosomes and DNA. These all things will be included in mitochondria. So let us quickly revise it. Mitochondria दोनों में present है, plant cell और animal cells में. Mitochondria को power house of the cell बोला जाता है. It is a membrane bound structure, पर यहाँ पे दो membrane होती है. Outer membrane जो होती है वो permeable होती है सबके लिए. Inner membrane जो होती है उसमें कई सारे foldings होते हैं. ये फोल्डिंग्स जो होते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हो सके विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. एटीपी को कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. जो माइटोकॉन्ड्रिया में से एनर्जी रिलीज होती है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और जैसे जैसे बॉडी को जरूरत है वैसे ये एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम एटीपी एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर सेवरल प्रोसेसेस अकरिंग इन द बॉडी और इवन फॉर सम केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी. ठीक है. और एक चीज, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल है क्योंकि उसमें डीएनए और राइबोसोम्स खुद का होता है एंड दे कैन डिवाइड ऑल्सो बाय देमसेल्व्स. मतलब सेल डिविजन अलग चल रहा है पर माइटोकॉन्ड्रिया का डिविजन भी अलग से हो सकता है. So that is all about mitochondria. Next we discuss about the plastids, that is chloroplast. So after mitochondria, one such more essential organelle that is the plastids. मतलब जितना important mitochondria है as an energy currency of the cell, सिमिलरली इतना ही इंपॉर्टेंट जो है दैट इज प्लास्टिड्स. बट प्लास्टिड्स जो होते हैं दे आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल्स एंड नॉट इन द एनिमल सेल्स. ओके. सो फर्स्ट पॉइंट वी विल मेंशन दैट दे आर फाउंड इन प्लांट सेल्स. जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो प्लास्टिड्स हैं दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. प्लास्टिड्स आर ऑफ Plastids are of two types. दो तरह के plastids होते हैं. The first one that is called chromoplast and the second one is known as the leucoplast. Plastids दो तरह के होते हैं, chromoplast और leucoplast. तो क्रोमोप्लास्ट जो प्लास्टिड है दैट इज अ कलर्ड प्लास्टिड. कलर्ड प्लास्टिड. वेयरएज ल्यूकोप्लास्ट जो होता है दैट इज व्हाइट और यू कैन से कलरलेस प्लास्टिड. ठीक है. पहले हमने मेंशन किया दैट प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं.
दूसरी बात, प्लास्टिड जो है वो दो तरह के होते हैं, आइदर अ प्लास्टिड विल बी अ कलर्ड प्लास्टिड और इट विल बी एन white or colorless one. If it is a colored one, it will be known as chromoplast, and if it is a white one, it will be known as the leucoplast. तो पहले हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, ठीक है. सो फर्स्ट वी मेंशन अबाउट क्रोमोप्लास्ट. तो क्रोमोप्लास्ट जो प्लास्टिड है उसमें कई तरह के पिगमेंट्स होते हैं. पिगमेंट्स मतलब क्या? Pigments are a type of chemical substance which impart color to leaf, impart color to fruits, impart color to flowers. तो chromoplast जो होता है that is found in all the parts of the plant. Chromoplast plastid, it is found in the cells of leaf, सेल्स ऑफ लीफ के अलावा जैसे कि फ्रूट्स है, फ्लावर्स एक्सेट्रा, ठीक है. तो प्लांट के जितने भी पार्ट्स आपको कलर्ड देखने को मिल रहे हैं उन सब में जो प्लास्टिड प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट. मतलब जो लीफ है तो उसका ग्रीन कलर होता है, फ्रूट्स है तो हमने देखे हैं दैट फ्रूट्स कैन बी येलो कलर्ड, ऑरेंज कलर्ड, राइट, ब्राउन कलर्ड फ्रूट्स आर देयर. तो अलग अलग कलर के फ्रूट्स होते हैं. तो फ्रूट्स में भी प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट सेल्स में भी. सेम वे फ्लावर्स भी अलग अलग कलर के होते हैं, उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड इज प्रेजेंट. अब ये सारे प्लास्टिड्स अलग होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स दे कैरी. सो दिस प्लास्टिड includes various pigments. प्लास्टिड के अंदर क्या होता है? पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है. तो प्लास्टिड जो होते हैं उसमें पिगमेंट्स कैसे होते हैं? तो जैसे कि कैरेट है तो कैरेट का ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है, मतलब कैरेट अपीयर्स ऑरेंज इन कलर. तो उसमें पिगमेंट प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट है पर पिगमेंट जो है वो अलग होता है, जैसे कि कैरोटीन. टोमेटो जो होता है वो रेड कलर का होता है, राइट. तो मेन प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट पर उसके अंदर पिगमेंट कौन सा होगा? लाइकोपीन. मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक प्लास्टिड में अलग अलग तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड में अलग अलग तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और जो पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो कलर दिखेगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि the chromoplast with the pigment chlorophyll is called chloroplast. अब ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी. अगर वो प्लास्टिड में पिगमेंट है क्लोरोफिल, राइट, अगर प्लास्टिड में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उस प्लास्टिड को हम क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट. व्हाट विल वी टॉक अबाउट एट? क्लोरोप्लास्ट. पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल है और पूरे प्लास्टिड जो है दैट विल बी क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड, एंड दिस विल हेल्प इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कौन से प्रोसेस में हेल्पफुल होता है क्लोरोप्लास्ट? फोटोसिंथेसिस. क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज अ मैकेनिज्म फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स. तो फूड जो है उसका सिंथेसिस होना दैट इज डन ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे ज्यादा एसेंशियल है वो है क्लोरोप्लास्ट विद द पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है. तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल कहा कि प्लास्टिड के अंदर तरह तरह के पिगमेंट्स हो सकते हैं. सो वी विल मेंशन दैट देयर कैन बी प्रेजेंस ऑफ येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स along with क्लोरोफिल. मतलब जरूरी नहीं है कि ग्रीन लीफ है मतलब सिर्फ क्लोरोफिल ही है.
लीफ का कलर ग्रीन होता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे विल हैव ओनली वन टाइप ऑफ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसके अलावा भी लीफ में येलो कलर के पिगमेंट्स या ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट्स शायद आपको नाम नहीं याद रहेगा, बट ऑरेंज कलर का जो पिगमेंट होता है उसे कहा जाता है केरोटीन। द नेम ऑफ द पिगमेंट इज केरोटीन। और येलो जो पिगमेंट है उसे कहा जाता है ज़ैंथोफिल। तो अलग अलग तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अलोंग विथ द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल तो है ही लीफ में, पर लीफ में क्लोरोफिल के साथ साथ येलो पिगमेंट्स और ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं, पर उनका नंबर कम होता है, इसीलिए लीफ सिर्फ ग्रीन कलर का हमें अपीयर होता है। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसमें भी सेम होता है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस एंड द इनर मेम्ब्रेन विल बी फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। तो मैं यहां पे थोड़ा डायग्राम आपके लिए बना देती हूं। तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन है दैट विल गिव राइज टू सच स्टैक पाइल ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स। And they all will be connected to each other. Right? तो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो होता है कंटिन्यूअस, और इनर मेम्ब्रेन में से बनता है ऐसे कॉइन की तरह अरेंज किया हुआ स्ट्रक्चर। ईच सिंगल यूनिट इज नोन एज थाइलेकॉइड। ईच सिंगल, ये एक हमने बनाया है, उतने एक को क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड कहते हैं। और ये जो पूरा स्टैक पाइल है इसे कहते हैं ग्रैना। व्हाट इट इज कॉल्ड, ग्रैना। ठीक है, एक सिंगल यूनिट को थाइलेकॉइड कहते हैं, और पूरा जो ऐसे अरेंज किया हुआ है उसे क्या कहते हैं, ग्रैना कहते हैं। और यहाँ पे अंदर जो जगह है, दिस होल रीजन विल बी नोन एज स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा जो है उसमें प्रेजेंट होगा राइबोसोम्स और डीएनए। ठीक है, तो और थाइलेकॉइड्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। थाइलेकॉइड्स में क्लोरोफिल होता है, जबकि स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम। सो जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स था, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए राइबोसोम्स था, स्ट्रोमा में भी डीएनए राइबोसोम्स इज प्रेजेंट। तो ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड, जिसे हमने कहा ल्यूकोप्लास्ट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है उसमें पिगमेंट्स नहीं होते, इंस्टेड ल्यूकोप्लास्ट विल बी फॉर स्टोरिंग स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, इस ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, स्टार्च स्टोरिंग ग्रैन्यूल्स, ऑयल के लिए ग्रैन्यूल्स और प्रोटीन स्टोरिंग ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें कोई भी पिगमेंट्स होते नहीं है, और पिगमेंट्स ना होने की वजह से ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, इसमें पिगमेंट्स है इसलिए अलग अलग कलर का होता है। ठीक है, सो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स। दो तरह के प्लास्टिड्स आपको याद रखने हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट हो तो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वैसे येलो पिगमेंट होता है, ऑरेंज पिगमेंट होता है, अलग अलग पिगमेंट होते हैं। ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल और प्लास्टिड का नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल के साथ साथ येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं लीफ के अंदर,
और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में डबल मेम्ब्रेन होती है, बाहर की मेम्ब्रेन पोरस, कंटिन्यूअस, परमिएबल, अंदर की मेम्ब्रेन जो है दैट विल गिव राइज टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जिसे कहते हैं थाइलेकोइड्स एंड दे अरेंज इन अ स्टैक पाइल व्हिच इज कॉल्ड ग्रेना। ये थाइलेकोइड्स जो है उनमें ही मेनली फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शंस होंगे, ठीक है। और फिर स्टोमा जो है उसमें डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है, इट इज आल्सो एबल टू रेप्लिकेट, डिवाइड ऑन इटसेल्फ। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी तरह का पिगमेंट नहीं होता, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टार्च, ऑयल या प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स को स्टोर करता है।